गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। आज हम इस जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स इन HTML5। फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं ताकि वेब पेज है वो उसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, बट हम यूज़र से कुछ इनपुट भी ले सके और आफ्टर टेकिंग द इनपुट यूज़र। तो देखा होगा आपने, बहुत सारे फॉर्म्स आप फिल करते हो ऑनलाइन, लाइक any recruitment exam form, any job application form, or any school admission form. There are number of forms that you have seen in the websites. So अब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे फॉर्म्स को बनाना है और उसके अंदर कौन कौन से इनपुट टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट कैच करवा सकते हैं। लाइक टेक्स्ट बॉक्स है, लाइक radio buttons, check box, text area. There are a number of input types available with the help of which we can take input from the user. तो चलिए डिस्कस करते हैं about the introduction of forms in HTML5. Before discussing about discussing about the forms, let me tell you what the purpose of making forms. It means so far that we have seen was to present the information that is in the form of either in the form of list, tables, or is just as a text. But this is not enough for a good web page. We want to design the web page that are more interactive. That means user put some inputs and get in return some output. So the page that gets the data from the user as an input, and after processing the data that was supplied by the user, return the results as an output. The forms is act as a two-way communication between the user and the server, or you can say at the back end. So how to process the data in web page? After the web page receives the data from the client to the web page by some means, such as by the form element, like the input elements, it need to be processed. There are two possible locations for processing the data. First one is the data can be sent through network to a web server machine where all such processing requests are processed, and then the result will be sent to the client machine. Client machine कौन सी होगी? Obviously the browser होगा जहाँ से उस पर्टिकुलर क्लाइंट ने कुछ फॉर्म एंटर करा होगा और रिटर्न में उसकी आउटपुट भी कहाँ पे मिलेगी? उसी पर्टिकुलर ब्राउजर को उसको मिलेगी. Which initiate the request by opening a page and filling some sort of form like admission form, feedback forms, any type of form. The second type of location of processing data is the data can be processed at client machine only. At client machine by some tiny programs embedded in the web page. These tiny programs are sent to the client side along the web page when the user load the web page. अब देखिए क्या बताया मैंने. There are two methods of processing the data. The first method is the data, the input that was supplied by the user is directly passed through the web server machine, and that information that was supplied by the user was processed at the web server location, and the output of that particular processed information will be sent back to the client. Second possible way क्या है हमारे पास? The data can be processed at client machine by itself. Means जो भी डाटा उसने प्रोसेस करना है आफ्टर गेटिंग द इनपुट, वो कहाँ पे हो? क्लाइंट साइड पे ही हो. मीन्स उसके ही ब्राउज़र में वो एडिशंस अकॉर्डिंग टू डाटा सप्लाइड बाय द यूज़र हो जाए. ये कैसे होता है? जब भी वो पेज डाउनलोड करता है, लाइक वेब पेज ओपन करता है, हम उसके साथ कुछ एम्बेडेड कोड्स ऑलरेडी वो साथ के साथ डाउनलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी इनपुट देता है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी प्रोसेस डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली उसको उसी के मशीन पे शो हो जाता है. लाइक सिंपल एग्जांपल है लाइक इसकी. अगर हम जैसे कई बार आपने फॉर्म्स में देखा होगा वहाँ पे ऑप्शन होती है स्टेट की और सिटी की. अगर वहाँ पे स्टेट ऑप्शन फिल करते हो, आपने सपोज करो स्टेट सेलेक्ट करी पंजाब, तो जैसे ही आपने स्टेट पंजाब सेलेक्ट करी है, द कॉरस्पॉन्डिंग सिटी में उसकी पंजाब के रिलेटेड सिटी सारी ओपन हो जाएगी. तो ये चीज़ें कहाँ पे? ये these things are done at the client side only. These things are not done on the server side. These things are done on client side. ठीक है. अगर आपकी ऑप्शन है कंट्रीज़ की, तो कंट्रीज़ जैसे ही आपने सेलेक्ट करें इंडिया, तो इंडिया के स्टेट सारी की सारी शो हो जाएगी. These things are
एम्बेडेड कोड्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने वेब पेज को रिक्वेस्ट करा है डाउनलोड होने के लिए, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। तो ये थी सारी सिंपल एग्जांपल अबाउट कैसे डाटा हमारा क्या होता है, प्रोसेस करता है इन टर्म्स ऑफ वेब सर्वर और बाय थ्रू द वेब सर्वर और थ्रू द क्लाइंट मशीन। वेब सर्वर की मैं एग्जांपल देता सकता हूँ, लाइक जैसे आपने कोई अपना लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबमिट करना है, तो आपने क्या किया, अपना डाटा वगैरह सारा सेंड करा, कहाँ पे भेजा, उस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे भेजा जहाँ पे आपका क्या था, अकाउंट डिटेल्स पढ़िए। लाइक आपने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट नंबर एंटर करा, तो उसने क्या किया, जैसे ही आपने उस सबमिट बटन पे क्लिक करा, तो जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो कहाँ पे प्रोसेस होने के लिए जाएगा, सर्वर पे जाएगा, जहाँ पे आपका एक्चुअल में डाटा सारा इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट की इंफॉर्मेशन पड़ी है कि आपका कितना बिल मंथली जनरेट हुआ है। तो जैसे ही वहाँ पे बटन आपने सबमिट किया, वहाँ पे सर्वर ने क्या उठाया, आपका अकाउंट नंबर, तो उसने अपने डाटाबेस में सर्च करा अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर से उसने क्या किया, आपका बिल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा उसका डाटा क्या किया, फैच किया और आपको रिजल्ट में क्या कर दिया, शो करवा दिया। ये जो सारा प्रोसेसिंग होती है डाटा की विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स होती है, तो आपको पता भी नहीं लगता कि किसने किस टाइम पे ये सर्वर से डाटा फैच होके आपके पास शो हो गया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी आपकी किसकी, वेब सर्वर के थ्रू डाटा कैसे प्रोसेस होकर आउटपुट की फॉर्म में यूजर को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, स्क्रिप्ट्स आर बेसिकली टाइनी प्रोग्राम्स होते हैं जो विद इन अ वेब पेज होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली वेब पेज के साथ डाउनलोड हो जाते हैं उसको हम टाइनी प्रोग्राम्स कहते हैं। यही टाइनी प्रोग्राम्स को हम स्क्रिप्ट का नाम भी दे सकते हैं। दे आर द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग डाटा presented on the page in a variety of ways, such as data submitted using some kind of form element. This data processing by mean of some script is done at client machine as opposed to the server machine. ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि जो ये स्क्रिप्ट्स के थ्रू जो डाटा हम मैनेज करते हैं या प्रोसेस करते हैं वो सारा के सारा कहाँ पे होता है, क्लाइंट साइड पे होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, जावा स्क्रिप्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल है जो कि ये हेल्प करती है हमें क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग करने के लिए, क्लाइंट साइड पे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। मैंने पहले भी बताया था जब हमने HTML का टॉपिक किया था, वहाँ पे हमने हेड सेक्शन के अंदर लिंक के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। तो लिंक में मैंने वहाँ पे क्या रिलेट करवा रहा था, स्टाइल शीट्स रिलेट करवा रहा था, और मैंने उसी टाइम बोला था अगर मैंने यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट फाइल लिखनी हो तो मैं कैसे लिखता हूँ, लिंक REL मीन्स रिलेट फाइल, विच टाइप ऑफ फाइल, तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर दूंगा, जावा स्क्रिप्ट। ओके, देन उसके बाद क्या करना होता था, हमें उसका रेफरेंस लिंक देना होता था, HERF रेफरेंस लिंक। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस होगा जहाँ पे आपने ये पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगी या एक टाइनी प्रोग्राम होगा जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया होगा, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ा होगा। तो वो हम ऑटोमेटिकली वेब पेज का जब हम उसको लोड करते हैं, अपने ब्राउज़र उसको लोड करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ वो पर्टिकुलर लोकेशन लोड हो जाती है। तो जैसे ही हमने स्टेट सेलेक्ट करी पंजाब, जैसे ही हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे पंजाब, तो सिटी के अंदर सारी की सारी जो पंजाब की सिटीज़ हैं वो आ जाएंगी, जैसे जलंधर हो गया, लुधियाना हो गया, अमृतसर हो गया। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर डन विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं, लाइक आपने कुछ एक इवेंट परफॉर्म करना है, लाइक जैसे कि आपने एक टेक्स्ट को बटन सबमिट बटन को क्लिक करा तो कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म होगा, लाइक कोई एक पेज लोड हो जाएगा या फिर आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। द फॉर्म एलिमेंट्स आर मेड टू इंटरेक्ट द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हमें चलाने के लिए जो हम एलिमेंट्स को असेस करते हैं वो ही वर्क करते हैं एज ए इवेंट हैंडलर्स। स्मॉल प्रोग्राम्स विद इन द पेज ऑफ फॉर प्रोसेसिंग द डाटा। डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैंडलर्स को, इवेंट हैंडलर्स को जनरेट करते हैं जो कुछ एक इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं, ताकि अगर हम ये प्रेस करेंगे तो दिस वर्क विल बी डन। अगर कुछ हमने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया तो सेकंड ऑप्शन के रिलेटेड जो भी इवेंट हो वो ट्रिगर हो जाए। दिस इंस्ट्रक्शंस आर डन बाय मीन ऑफ इवेंट हैंडलर्स। इवेंट हैंडलर्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म एलिमेंट विच their values determine what sort of action to take in case of event occur। जैसे ही कोई वो एक्शन हम चूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है वो ऑटोमेटिकली इवेंट विल डिसाइड एंड टेक्स द एक्शन।
Following are some of the examples of event handlers or some actions performed by, like when you submit a form, सबमिट फॉर्म होने के बाद वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करे, माउस क्लिक के ऊपर, क्लिकिंग का माउस, जैसे ही हमने किसी एक बटन पे या किसी एक टेक्स्ट के ऊपर माउस क्लिक करा है तो उसके बाद क्या वो एक्शन परफॉर्म करे। पार्सिंग अ माउस ओवर अ लिंक, कई बार आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे एक लिंक लगाया है, सपोज करो ABC अंडरलाइन, क्योंकि लिंक हमेशा अंडरलाइन होता है। जैसे ही आप अपना माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके जाओगे तो इसका कलर कई बार क्या होता है, चेंज होता है। तो दीज आर सम द इवेंट्स जो आपको हाईलाइट करता है कि जो ये मैं ABC टेक्स्ट के ऊपर जब भी मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स वो स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे क्या लगा है, एक लिंक लगा है। लोडिंग का पेज, जब आप एक कोई पेज लोड करोगे तो वहाँ पे क्या क्या इवेंट परफॉर्म हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले डिस्प्ले करवाएं। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई सिटी है, लाइक अगर हमने स्टेट पहले चूज़ नहीं करी है तो वहाँ पे पंजाब स्टेट आए तो वहाँ पे सिंपली पहले पंजाब के सिटीज़ शो हो रही होंगे। अगर जैसे ही मैं उसको चेंज करूँगा, लाइक अब पंजाब की जगह मैंने हरियाणा चूज़ करा तो हरियाणा की सिटीज़ क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। सिलेक्टिंग एन आइटम और अ बटन, आइटम और बटन को सिलेक्ट करने के लिए जैसे ही मैंने कोई आइटम और बटन सिलेक्ट करा उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। लाइक आपने देखा होगा जैसे ही ईमेल एड्रेस है, जैसे ही मैंने ईमेल एड्रेस एंटर किया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो हमसे पासवर्ड पूछ लेता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ इवेंट हैंडलर्स। लाइक क्लिकिंग अ बटन और अ लिंक, जैसे ही हम किसी बटन को या लिंक को क्लिक करते हैं तो वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि लिंक बनाते टाइम जैसे ही हमने ए रेफरेंस पे लिंक लगाते थे, जैसे ही वो ए टैग पे हम क्लिक करते थे वो ऑटोमेटिकली हमें नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करता था। तो ये क्या है, इवेंट ही जनरेट कर रहा है। ऑन क्लिक एक इवेंट होगा, जैसे ही हम ऑन क्लिक पे करेंगे तो वो एक पेज हमें क्या कर रहा है, लोड करवा रहा है। लाइक नेक्स्ट इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट फील्ड और अ टेक्स्ट एरिया, जैसे ही हम किसी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन वो परफॉर्म करेगा। लाइक ऑन चेंज, जैसे ही पहले वो जो टेक्स्ट लिखा होगा उसके ऊपर वो हम चेंज करेंगे तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट करेगा। या फिर ऑन सबमिटिंग, जैसे ही हमने कुछ सबमिट करा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या लेगा, एक्शन लेगा, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमने करे होंगे, आइदर विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट और बाय सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं फॉर्म्स की। फॉर्म एक एलिमेंट है विच इज़ यूज टू क्रिएट अ डाटा इनपुट फॉर्म्स। फॉर्म क्या है, एक एलिमेंट टैग है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाटा इनपुट फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। डाटा इनपुट फॉर्म्स क्या होंगे, ये वो फॉर्म्स होंगे जिसकी हेल्प के साथ जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, कुछ इनपुट सप्लाई करेगा फॉर प्रोसेसिंग एंड इन रिटर्न्स आफ्टर प्रोसेसिंग he or she will get the results, or you can say processed information, processed info। अब फॉर्म्स कैसे हमने डिक्लेयर करने हैं। अ रीजन यूजिंग फॉर्म इज एनक्लोज्ड विद इन द ओपनिंग फॉर्म एंड क्लोजिंग फॉर्म टैग। जो भी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्म टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इनसाइड लिखेंगे, वो सारा का सारा क्या कंसिडर होगा, एज ए फॉर्म कंसिडर होगा। अ डॉक्यूमेंट कैन हैव सेवरल फॉर्म्स बट द फॉर्म शुड नॉट बी एम्बेडेड। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ फॉर्म्स हो सकते हैं बट वो आपस में लिंक नहीं होंगे, शुड नॉट बी एम्बेडेड, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है जी। द फॉर्म्स एलिमेंट हैज़ 4 मेन एट्रीब्यूट्स। अब जो फॉर्म है, जैसे हमारा पहले HTML था, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक एट्रीब्यूट्स है, लाइक वहाँ पे हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज़ करते थे। फिर हमारे पास आया था हेड के अंदर हमने क्या करते थे, टाइटल यूज़ करते थे, टाइटल के साथ हम लिंक टैग यूज़ करते थे, लिंक के भी अदर फर्दर एट्रीब्यूट्स थे, रिलेट, एच रेफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म टैग है उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी हेल्प से वो फॉर्म वर्क करता है। तो जो मेन 4 एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म के, देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एक्शन, सेकेंड इज मेथड एंड थर्ड वन इज इंक्रिप्टेड एंड द लास्ट वन इज नेम। चलो अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म मेथड इज मेथड मीन्स हमने जो डाटा पास करना है वो किस मेथड के साथ आगे एनकोड हो। ठीक है, द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द वे इन विच डाटा फ्रॉम द यूजर आर एनकोडेड। जो हम डाटा लेंगे यूजर से गेट करेंगे वो कैसे एनकोडेड फॉर्म में जाए। द डिफॉल्ट मेथड इज गेट,
मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है गेट मेथड, सेकंड होता है पोस्ट मेथड। जो गेट मेथड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पोस्ट अगर हमने यूज़ करना तो हमें डिक्लेयर करना पड़े मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ऑल्दो द पोस्ट मेथड इज़ प्रेफर्ड, बट मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पोस्ट। क्यों यूज़ करते हैं मैं अभी बताता हूँ। फर्स्ट है डिस्कस करते हैं गेट। द CGI प्रोग्रामर रिसीव्स द एनकोडेड फॉर्म इनपुट इन द क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल विच फॉलो द क्वेश्चन मार्क इन द URL दैट कॉल्स द स्क्रिप्ट। कहने का क्या मतलब है कि जो गेट मेथड होता है, जब भी हम कोई डाटा फॉर्म के अंदर फिल करते हैं, ठीक है, और जो अगर हमने मेथड यूज़ किया होगा गेट टू सबमिट दैट पर्टिकुलर फॉर्म डाटा, तो अगर हमने गेट मेथड यूज़ करा होगा तो जो भी आपने डाटा सेंड करा होगा वो URL में डिस्प्ले हो रहा होगा, लाइक दिस नेम इक्वल्स टू जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया होगा, लाइक तरुण, एफ नेम, या आप कह सकते हो फ़ोन नंबर, तो वो भी सारा कहाँ पे शो हो रहा होगा, आपके URL में शो हो रहा होगा, लाइक 950 वटेवर, ठीक है। बट अगर पोस्ट मेथड की बात करें, द पोस्ट मेथड इज अ CGI स्क्रिप्ट और अ प्रोग्राम दैट रिसीव्स द एनकोडेड form input in a standard input stream. In a standard input stream, the connect length must be used. The content length must be used. But post method में क्या होता है, जो हमारा डाटा हम यूज़र इनपुट करता है वो किसी को विजिबल नहीं होता है, वो एज ए स्क्रिप्ट एक फाइल में के अंदर से एनकोडेड फॉर्म में जाके, अब जहाँ पे भी उसने सर्वर में जाके सेव होना होता है या प्रोसेस करना होता है, वहाँ पे डायरेक्टली एज ए फाइल सेंड होता है, ना कि आपके URL में शो, ठीक है। तो हम प्रेफर क्यों करते हैं पोस्ट मेथड क्योंकि हम जो हमारा सेंसिटिव डाटा होता है उसको हम एज ए गेट मेथड पास नहीं करवा सकते हैं, ताकि कोई हैकर उसको हैक ना कर ले। लाइक अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए गेट मेथड यूज़ कर दिया है तो वो तो ऑटोमेटिकली किसी को भी विजिबल हो सकता है। अगर आपके साथ भी कोई पर्सन बैठा है तो उसने भी देख लेना कि आपने क्या यूज़र नेम है और क्या आपका पासवर्ड है, क्योंकि वो URL में डिस्प्ले हो जाएगा। बट पोस्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे आपको एनकोडेड फॉर्म में फाइल बन जाती है जो कि फर्दर सेंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्शन। एक्शन स्पेसिफाइज अ डेस्टिनेशन URL। क्या स्पेसिफाई करता है, डेस्टिनेशन URL टू विच द फॉर्म शुड बी सबमिटेड। अब देखिए डाटा आपने कुछ एंटर करा है, एज ए इनपुट दिया, अब जो इनपुट लिया उसको प्रोसेस करने के लिए वो कहीं पे जाके उस डाटे की प्रोसेसिंग होनी है। अब जो प्रोसेसिंग होने का जो URL होगा, जो लोकेशन होगी, वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमें एक्शन एट्रीब्यूट से, वो हमें लोकेशन मिलेगी। वंस इट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द यूज़र, जैसे ही यूज़र अपना डाटा सबमिट करेगा तो हम जो जैसे उसने सबमिट का बटन दबाया तो वहाँ पे क्या होगा, एक एक्शन जनरेट होगा कि जो यूज़र ने डाटा अपना सबमिट करवाया उसको मैंने कहाँ पे लेके जाना, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके प्रोसेस करना है। और वो लोकेशन कौन बताएगा, वो बताएगा हमें एट्रीब्यूट एक्शन। कहता है इफ़ नो URL इज स्पेसिफाइड, अगर हमने कोई URL स्पेसिफाइड नहीं किया है, द URL ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द फॉर्म इज यूज्ड। अगर हमने कोई एक्शन में कोई कुछ नहीं डाटा, कोई वैल्यू पास नहीं करी है, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगा डाटा, वो ऑटोमेटिकली सेम पेज के एड्रेस पे ही चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यही मेथड यूज़ होता है, बट हम इसको सेल्फ पे रिलेट नहीं करवाते हैं। ऑटोमेटिकली हमेशा अगर हमने कोई फॉर्म मेथड जहाँ पे भी यूज़ करते हैं तो हम उससे कैसे पास करते हैं, बाय डिफाइनिंग द डेस्टिनेशन URL। नेक्स्ट आता है आपका मेल टू एक्शन। कई बार हमें क्या होता है कि जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं उसकी डायरेक्टली मेल करनी होती है जो लाइक उसका ऑनर होगा या जो भी हमारा सर्वर बैकएंड पे जिसमें इसको मैनेज करना होता है। तो द डाटा फ्रॉम द फॉर्म इज मेल टू द स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस, यूज द पोस्ट मेथड। बट अगर हमने मेल करनी है तो हमें वहाँ पे एक्शन में मेल का एड्रेस देना होता है, बट जो मेल जाती है वो एज ए पोस्ट मेथड ही हम अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स मेल टू एक्शन कहाँ पे अप्लाई होगा, इन कॉम्बिनेशन विद पोस्ट मेथड ओनली, ओके। नेक्स्ट आती है इंक्रिप्शन टाइप, ठीक है। ENCT टाइप मीन्स इंक्रिप्शन टाइप। दिस टेल्स द ब्राउजर हाउ द डाटा फ्रॉम अ फॉर्म शुड बी एनकोडेड एंड व्हेन इट इज टू बी रिटर्न टू द सर्वर। मीन्स हमने जो डाटा यूजर से ले रहे हैं वो कैसे किस फॉर्म में उसको एनकोड करना है और उसको कब डाटा सर्वर को आगे पास करना है। द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ एनक्रिप्शन इज
application/x-www.form.url encoded that convert spaces to प्लस। जहाँ पे भी आपके यूआरएल में जो भी स्पेस होगी या जो आपके टेक्स्ट में कोई स्पेस आ रही होगी, उसको वहाँ पे स्पेस की जगह पे क्या सिंबल आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। एंड यूजेस एम्परसेंड साइन टू डेलिमिनेट डिफरेंट डाटा फील्ड्स। अगर दो डिफरेंट डाटा फील्ड्स हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एम्परसेंड का साइन हमें यूज़ करना है। ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होती है, हमें इसके बारे में डीपली स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से रिलेट नहीं कर रहा है। जस्ट आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप को बता रहा हूँ कि मीन्स इंक्रिप्शन कहते कैसे हैं, और ये एज ए एट्रीब्यूट है जो किसके लिए है, फॉर्म टाइप का मेन एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट आता है नेम। नेम एट्रीब्यूट, दिस इज यूज टू गिव द नेम टू द फॉर्म। जो भी आप फॉर्म बना रहे हो हमें उसका कोई ना कोई नेम देना होता है ताकि वो डिफरेंट फॉर्म से डिस्टिंग्विश कर सके। फॉर टास्क रिलेटेड टू द यूजर इनपुट डाटा प्रोसेसिंग, कोई भी फॉर्म बनाना है उसका नेम देना भी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो अब फॉर्म टैग वर्क कैसे करता है या फॉर्म टैग का फर्स्ट लुक क्या है, तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर द फॉर्म टैग। फर्स्टली ओपनिंग एंगल ब्रैकेट फॉर्म देन एक्शन टू गेट emp.asp एक कोई वेब पेज है जहाँ पे मैंने अपना जो भी यूज़र से डाटा लेना है वहाँ पे उसको पोस्ट करना है या आप कह सकते हो उसको डाटा को पास करवाना है। और मेथड यहाँ पे मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, पोस्ट। मीन्स कि जो भी मेरा डाटा जाए वो एज ए इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, किसी को विजिबल ना हो। अब इसके अंदर ऑल द फॉर्म एलिमेंट इनसाइड, जो भी मैं अपना जैसा भी डाटा मेरे को चाहिए, मेरे को अगर डाटा टेक्स्ट फील्ड में चाहिए तो टेक्स्ट होगा, अगर यहाँ पे मेरे को चेक बॉक्सेस चाहिए, या फिर मेरे को रेडियो बटन से डाटा चाहिए, या फिर मेरे को ड्रॉप डाउन से डाटा चाहिए, जिस टाइप का भी डाटा मैंने इनपुट यूज़र से लेनी है वो मैं यहाँ पे सारे फॉर्म एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे ही फॉर्म एलिमेंट मैंने डिक्लेयर करके डाटा एक्सेप्ट कर लिया तो फॉर्म टैग का एंड हो जाएगा और वो सारा का सारा डाटा कहाँ पे चला जाएगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चला जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आगे इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज अब इनपुट जो है हमारी किस किस टाइप से हम डाटा यूजर से ले सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो टैग है दैट इज इनपुट एलिमेंट टैग। इनपुट ही एक सिंगल टैग है जो फॉर्म्स के अंदर यूज होता है टू टेक इनपुट। क्या लेने के लिए, इनपुट, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। इट इज ओनली यूज्ड विद इन अ फॉर्म एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय इनपुट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट विद द टैग नेम दैट इज कॉल्ड इनपुट। अब जो इनपुट एलिमेंट है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम, सबसे पहले एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट। जो भी हमने इनपुट टाइप स्पेसिफाई करनी है हमें सबसे पहले उसका क्या देना पड़ेगा, नेम देना होगा। नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट ABC टेक्स्ट फील्ड में वो क्या एक्सेप्ट करवा रहा है, नेम एक्सेप्ट, फर्स्ट नेम एक्सेप्ट करवा रहा है या लास्ट नेम एक्सेप्ट करा रहा है या फ़ोन नंबर एक्सेप्ट करा रहा है, कुछ भी, तो हमें उसके रिलेटेड उसका क्या देना होगा, एक नेम देना होगा। मैक्सिमम लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरामीटर और यू कैन से ये एट्रीब्यूट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी कोई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, आया हुआ है NIT एग्जाम में। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स, मैक्स लेंथ स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट कैन बी एंटर्ड बाय यूजर इन टेक्स्ट फील्ड। जो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा होगा उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इंसर्ट करवा सकते हैं, हमें वो कैसे स्पेसिफाई करने होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ मैक्स लेंथ ही स्पेसिफाई करने होते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ अगर मेरे पास कोई नाम है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 करेक्टर तक ही हम उसको इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। अगर उसका नाम सपोज करो 27 करेक्टर्स का है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज साइज। साइज स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द फील्ड एंड डिपेंड अपॉन इट्स टाइप, कि कितनी साइज उस पर्टिकुलर फील्ड का हो सकता है। और ये साइज एट्रीब्यूट हर एक इनपुट टाइप के लिए यूज़ नहीं होता है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के लिए यूज़ होता है। किसके लिए होता है ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम टाइप्स ऑफ इनपुट करेंगे। नेक्स्ट आता है SRC। SRC डिनोट्स द URL ऑफ एन इमेज। अगर हमने इमेज को एज ए इनपुट लेना है तो वहाँ पे हम SRC एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। ये भी हमारा मोस्टली यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ ही इनपुट टाइप्स के लिए ही यूज़ कर पाते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आती है वैल्यू। वैल्यू भी अगेन इम्पोर्टेंट वन, ठीक है।
इट कंटेन द इनिशियल वैल्यू डिस्प्ले टू द यूज़र। अगर सपोज करो कई बार आपने देखा होगा फॉर्म ऐसे होगा नेम, तो वहाँ पे ये सपोज करो ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा है तो यहाँ पे लिखा होता है एंटर द नेम, उसके अंदर ऐसे टेक्स्ट लिखा होता है। तो ये टेक्स्ट कैसे होता है, ये टेक्स्ट कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, बाय द एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन द इनिशियल वैल्यू डिस्प्ले टू द यूज़र। और कई बार देखा होगा लाइक जैसे हम पहले स्टेट्स की बात कर रहे थे, ड्रॉप डाउन में सपोज करो ये आपका ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे लिखा होता है सिलेक्ट द स्टेट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो ये कैसे होता है, विद द सेटिंग द वैल्यू ऑफ टू दैट पर्टिकुलर नेम, जो भी आपने डाटा एंटर करवाना है वैल्यू इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप यहाँ पे शो करवा सकते हो, तो आपकी इस वे में शो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है टाइप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइप स्पेसिफाइज कि आपने जो इनपुट टैग यूज़ कर रहे हो वो किस टाइप के लिए यूज़ कर रहे हो। लाइक आपने जो फॉर्म बनाना है उसमें टेक्स्ट फील्ड एंटर करवानी है, ठीक है, या उसमें आपने टेक्स्ट एरिया करवाना है, ठीक है, या फिर आप वहाँ पे चेक बॉक्सेस का इंसर्ट करवाना है, या फिर आपने वहाँ पे रेडियो बटन करवाने हैं, या फिर आपने वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू करवाना है, ठीक है। तो टाइप हमें बताती है हमें किस टाइप का इनपुट एलिमेंट यूज़ करना है टू गेट द इंफॉर्मेशन और टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सो टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डाटा यूज्ड इन द फील्ड, किस टाइप का डाटा उस फील्ड में यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है चेक्ड इंडिकेट्स दैट अ चेकबॉक्स और अ रेडियो बटन इज सिलेक्टेड और नॉट। तो हम चेक जो ये एट्रीब्यूट है सिर्फ हम चेकबॉक्स और रेडियो बटन्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कई फॉर्म्स में लाइक अगर जेंडर की बात करें मेल फीमेल की ऑप्शन आ रही है, उसमें से दोनों में से एक तो ऑलरेडी चेक होता ही है, ठीक है, ठीक है। अगर मेल चेक है तो अगर आप जो डाटा यूज़र एंटर कर रहा है वो मेल है तो उसको एज इट इज़ उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो जो यूज़र है वो फीमेल है तो उसमें उसको फीमेल पे क्लिक करना होता है, ठीक है। सिमिलरली चेक बॉक्स है तो वहाँ पे एक या दो चेक बॉक्स आइटम्स चेक होती हैं, अगर आपने उसको अनसेलेक्ट करके कोई दूसरी सेलेक्ट करनी है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली फंडा क्या है चेक्ड का कि आपने मिनिमम से मिनिमम कुछ भी एक या दो आइटम्स को सिलेक्ट या अनसेलेक्ट करके शो करवा सकते हो। अगर तो यह फील्ड आपने ये एट्रीब्यूट यूज़ किया होगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी आइटम को चेक करना है in terms of checkbox और in terms of radio button, okay। next आती है disabled is this type attribute is rarely used। डिसेबल कहाँ पे यूज़ करते हैं, लाइक कई बार आपने देखा होगा कुछ हम फॉर्म्स फिल करते हैं तो वहाँ पे कोई फील्ड्स क्या होती है डिसेबल कर देते हैं। लाइक सपोज करो आपने एक एडमिशन का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, वहाँ पे आपका एडमिशन में क्या करने है, आपने कैटेगरी फिल करी है तो कैटेगरी जनरल SC ST, ठीक है। जैसे ही आपने SC ST सिलेक्ट करा ड्रॉप डाउन से तो आपके पास एक नीचे फील्ड ओपन हो जाएगी जो कि है स्कॉलरशिप के लिए। तो आपने स्कॉलरशिप अप्लाई की है, येस और नो आपने उसका आंसर दे देना है। सपोज अगर आपने अपनी जो कैटेगरी है वो जनरल सेलेक्ट की है तो जनरल्स के लिए आज की डेट में कोई स्कॉलरशिप्स नहीं है, तो जैसे ही आपने जनरल सेलेक्ट करी तो जो नीचे वाली उसके बिलो डाउन जो थी स्कॉलरशिप की डिटेल्स की, हैव यू अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप येस और नो, तो वो फील्ड क्या हो जाएगी आपके लिए डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमने उसको फील्ड को स्पेसिफाई करा होता है, उसका कनेक्शन किसके साथ दिया होता है, वो प्रीवियस फील्ड के साथ दिया होता है कि अगर हमने ड्रॉप डाउन से अगर जनरल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली ऑटोमेटिकली फील्ड डिसेबल हो जाए। डिसेबल मीन्स आप उस फील्ड में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ना तो उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट कर सकोगे ना ही कुछ उसको सिलेक्ट कर सकोगे, राइट। नेक्स्ट आता है अलाइन इफ इमेज इज यूज्ड। अलाइन इज एट्रीब्यूट हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमने उस पर्टिकुलर इमेज को यूज़ करा है, लाइक हो इमेज को डालने के लिए, इंसर्ट करवाने के लिए या सिलेक्ट करवाने के लिए हमने यूज़ करा है, तभी हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने बताया था SRC जो था मेरे पास SRC, ये भी हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इमेज के लिए यूज़ करते थे। सिमिलरली अलाइन भी अब कब यूज़ होगा, जब हमें जो इनपुट होगी और इन टर्म्स ऑफ इमेज होगी और तभी हम अलाइन को भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है रीड ओनली प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द फील्ड। मीन्स अगर हमने कोई ना कोई वैल्यू डायरेक्टली फिल करवा रहे हैं फॉर्म में से, बट वो वैल्यू आपको एज इट इज़ रीड ओनली मोड में ही शो होगी, हम उसको वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लाइक अगर आप कोई एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो फर्स्ट पेज में क्या होता है आपका बेसिक, आप सबसे पहले वो आपका क्या पूछ लेता है,
नाम पूछ लेता है, आपका रोल नंबर या आपका फादर नेम पूछ के वो नेक्स्ट पेज पे आपको मूव कर देता है। तो नेक्स्ट पेज पे आपने देखा होगा कि आपका नाम एज इट इज़ शो हो रहा होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने एक बार उसको सबमिट करके स्पेसिफाई कर दिया है। नाम तो आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे ABC, बट आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने फर्दर और नेक्स्ट पेज पे हमने उसकी फील्ड को क्या सेट कर दिया होता है, रीड ओनली सिलेक्ट कर दिया होता है। ओके, नेक्स्ट आता है फॉर्म लेबल एलिमेंट। लेबल एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लेबल एलिमेंट डिफाइंस अ लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट्स। लेबल मीन्स कुछ ही चीज़ का कुछ नाम देना, ठीक है। अगर हमने कोई एक बॉक्स, अगर मैं एक फॉर्म बनाया, सपोज करो ये मेरा फॉर्म बनाया, तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, सपोज करो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया चेक बॉक्स, 1 चेक बॉक्स, 2 चेक बॉक्स, 3 चेक बॉक्स, यहाँ पे लगा दिया रेडियो बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे सपोज करो G लिख दिया, यहाँ पे F लिख दिया, यहाँ पे कार लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्कूटर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रक। तो लेबल क्या डिफाइन करता है कि हमने जो ये फील्ड्स लगाई हैं उसका एक्चुअल में क्या मीनिंग है, लाइक किस पर्पस के लिए हम हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सिंपल ये चीज़ फील्ड होती है, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड खाली शो हो रहा होता है, यहाँ पे लिखा होता है ट्रक, स्कूल और कार, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है G और F, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने ये क्या एंटर करना है और किस पर्पस के लिए हमसे ये इनपुट मांग रहा है। तो लेबल क्या करता है, हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन बताता है कि जो भी हमने डाटा के इनपुट लेनी है वो क्यों ले रहे हैं, उसके क्या लेबल है, उसके क्या मीनिंग है। दैट इज वाई वी यूज लेबल एलिमेंट। द लेबल एलिमेंट टैग्स डिफाइन अ लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट। द लेबल एलिमेंट इज यूज्ड फॉर स्क्रीन रीड यूजर्स because the screen readers will read out loud the label when the user is focused on the input element। जब भी हम यूजर ने इनपुट एलिमेंट पे फोकस करना है, वो सबसे पहले क्या देखेगा, उसका लेबल चेक करेगा कि लेबल में क्या है, वो हमसे क्या मांग रहा है हमें एंटर करवाने के लिए। अगर यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड खाली होगी तो इसके आगे अगर मैं नेम लिख दूंगा तो ऑब्वियसली यूजर को पता लग जाएगा कि मेरे को इस फील्ड में क्या एंटर करवाना है, मेरे को नेम करवाना है। तो अगर सेकेंड मोड में, अगर यहाँ पे चेक बॉक्सेस है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि आपने किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करना है। तो अगर आपने ट्रक को चूज करना है या स्कूटर को चूज करना है या कार को चूज करना है तो आप चूज कर सकते हो। तो लास्ट में है आपका जेंडर, तो G और F में से आप किसी को भी एक में से, सॉरी G की जगह पे M आना था, M और F में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जब तक कि लेबल नहीं डिफाइन हो गया तो यूजर को नहीं पता चलेगा कि हमने इनपुट देनी है, ठीक है। द फॉर एट्रीब्यूट, यहाँ पे एक है फॉर एट्रीब्यूट। For attribute of the label tag should be equal to the ID attribute of the input element to bind them together। Like कोई भी लेबल देना है, हमें लेबल का क्या देना होगा, कुछ नाम देना होगा, ठीक है। जो नाम क्या होगा, वेब पेज के बैकएंड पे काम आएगा कि हमने इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए ये नाम दिया था, ठीक है। वो नाम यूजर को नहीं शो होगा बट मेक्स द वेब पेज मोर यूजर फ्रेंडली, हमें उसका नाम देना जरूरी है। तो 4 एट्रीब्यूट्स के साथ हम क्या दे सकते हैं, लेबल का नाम दे सकते हैं। लाइक ये मैंने एग्जांपल करिए नीचे, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, देन द टैग नेम दैट इज लेबल 4 इज एन एट्रीब्यूट यूज टू लेबल द यूज टू पुट द लेबल द नेम ऑफ द लेबल, और यू कैन से पुट द नेम ऑफ द दैट पर्टिकुलर लेबल फॉर विच यू आर यूजिंग। तो यहाँ पे मैंने F नेम लिखा है, तो F नेम स्पेसिफाई क्या करेगा, जो फर्स्ट नेम का लेबल का मैंने क्या नाम दिया है, F नेम दे दिया है। तो यहाँ पे लेबल दे दिया मैंने, मीन्स टेक्स्ट अप्लाई कर दिया और टैग को एंड करा। तो इसी के साथ मैंने क्या ले लिया, नीचे इनपुट फील्ड ले लिया। इनपुट क्या पता है, सबसे पहले टाइप बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइप से ही पता लगता है कि जो यूज़र डाटा एंटर करेगा वो किस टाइप का डाटा एंटर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। तो इट मीन्स ये कैसे आएगा आउटपुट में, फर्स्ट नेम कॉलन, यहाँ पे क्या लग जाएगी आपकी टाइप, वहाँ पे टेक्स्ट थी तो यहाँ पे क्या एक ओपन हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा जिसकी आईडी क्या होगी, फर्स्ट नेम था। अब देखिए यहाँ पे नेम में क्या है, आईडी क्या है, फर्स्ट नेम है। यहाँ पे लेबल टैग के लिए हम 4 टैग यूज़ करते हैं और इनपुट टाइप्स की आईडी देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे नेम क्या हो गया, उसका फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ ये बॉक्स शो हो जाएगा इन द आउटपुट।
नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स क्या होते हैं? एन ऑब्जेक्ट वेयर सेवरल वैल्यूज कैन बी सिलेक्टेड एट द सेम टाइम। हम मल्टीपल वैल्यूज जब हमने सेलेक्ट करनी हो तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं चेक बॉक्स। सेम टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। द चेक बॉक्स इज सबमिटेड एज ए सेपरेट नेम वैल्यू पेयर फॉर ईच सिलेक्टेड वैल्यू। तो जो भी हम वैल्यूज सिलेक्ट करते हैं वो एज ए इंडिविजुअल और ए ग्रुप वैल्यू सिलेक्ट होती है। हर एक का क्या होता है? वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। लाइक आपने यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या बन जाएगा? मेरा लेबल बन जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेबल टैग मैं इसको मेंशन कर दूंगा और इसके नीचे क्या आ जाएंगे? चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स लगा तो यहाँ पे मैंने लगाया कार। एक और चेक बॉक्स लिया, लिखा बस। चेक बॉक्स लगाया स्कूटर या ट्रेन। तो आप चाहो तो मल्टीपल चारों के चारों यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एक या दो। ठीक है, तो मल्टीपल भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे मैंने कैसे लगाए हैं? बाय द टाइप ऑफ चेक बॉक्स। चेक बॉक्सेस दैट आर ग्रुप टुगेदर शुड हैव डिफरेंट नेम एंड अ यूनिक वैल्यू। अगर हमने मल्टीपल चेक बॉक्स यूज करने हैं तो उनका क्या होगा? हर एक का नाम डिफरेंट होगा और हर एक की वैल्यू क्या होगी? एक डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आपने कार और बस की वैल्यू सेम कर दी तो यूज़र को पता नहीं लगेगा कि उसने कार सेलेक्ट करी है कि बस सेलेक्ट करी है। इसीलिए जब भी हमने चेक बॉक्सेस लगाने हैं, जितने भी हमने मल्टीपल चेक बॉक्स लगा रहे हैं तो हर एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। लाइक ए बी सी डी या कुछ भी कर सकते हो आप। ओके, या कार बस स्कूटर ट्रेन भी ना उसको नाम दे सकते हो, वैल्यू असाइन करवा सकते हो। तो ये एग्जांपल है चेक बॉक्स की। तो यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया। तो देखिए फॉर्म पहले सबसे पहले मैंने क्या लगाया? फॉर्म लगाया। ठीक है, व्हाट पेट डू यू ओन? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पास कौन सा पेट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पी टैग के अंदर क्या लगाया? एक इनपुट लगाई है। इनपुट टैग यूज़ करना है क्योंकि जब भी चेक बॉक्स लगवाने के लिए हमें कौन सा टैग, मेन टैग क्या है फॉर्म का? इनपुट ही है, जिसके थ्रू हम किसी भी टाइप की इनपुट यूज़र से गेट कर सकते हैं। तो टाइप क्या लगाई हमने? टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। नेम क्या दिया उसका? पेट डॉग। ओके, तो वैल्यू क्या दी उसकी? डॉग दी। ठीक है, और तो डॉग यहाँ पे शो करवाया। तो मीन्स चेक बॉक्स किसके आगे आएगा? किस कीवर्ड के आगे आएगा? डॉग के आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा आ जाएगा व्हाट पेट डू यू ओन। तो फर्स्ट चेक बॉक्स आया डॉग के लिए। इसकी वैल्यू क्या होगी? जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है, दैट इज डॉग। ये वैल्यू यूजर को तो शो नहीं होगी, बट ये बैकएंड में जब डाटा सबमिट होगा उस टाइम पे ये वैल्यू क्या होगी? यूज होगी। नेक्स्ट आया बी आर। बी आर टैग अब यहाँ पे क्यों लगाया है? लाइन ब्रेक करने के लिए, ताकि जो नेक्स्ट चेक बॉक्स आए वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शो हो मेरा। अगर यहाँ पे मैं बी आर टैग नहीं लगाता तो ऑटोमेटिकली इसके साथ ही वो चेक बॉक्स शो हो जाना था, बट अब मैं बी आर टैग यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी टाइप क्या लगी? चेक बॉक्स लगी। नेम क्या लगा? पेट कैट। डिफरेंट नेम यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने पेट डॉग किया, अब यहाँ पे क्या किया? पेट क्या है मेरी? कैट है। वैल्यू क्या लगाई मैंने? कैट दी। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट वैल्यू, यूनिक वैल्यू दे रहा हूँ कैट, और आउटपुट लाइक डिस्प्ले क्या करवाना है मैंने? कैट करवाना है। ये याद रखना, इनपुट जो है वो हमारा अगेन सिंगल टैग ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई कैट। सिमिलरली अगेन बी आर टैग लगाया तो नेक्स्ट किसके लिए लगाया? बर्ड के लिए लगाया, तो बर्ड नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट लगे आया फिश के लिए। अगेन चेक बॉक्स फिश। वैल्यू क्या है इसकी? फिश है यहाँ पे, और इसकी क्या है? बर्ड है। तो जैसे ही हम इसमें से किन्हीं को भी चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। लाइक मैंने दो सेलेक्ट करी है तो दोनों की वैल्यू फॉर्म को जब हम सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेडियो बॉक्सेस। अब रेडियो बॉक्सेस क्या होते हैं? आपने देखा होगा मोस्टली लाइक जेंडर, आपने मोस्टली ये वाला बहुत बार देखा होगा। यहाँ पे होता है एम और यहाँ पे एक ऐसा राउंड होता है फीमेल। ठीक है, अब जेंडर मैंने कैसे लगाया है? विद द हेल्प ऑफ लेबल। अब ये जो रेडियो बटन्स हैं एम और एफ मीन्स मेल और फीमेल के लिए, ये कैसे लगेंगे? विद द हेल्प ऑफ रेडियो टाइप।
रेडियो टाइप, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट डिफाइन एन आइटम वेयर ओनली वन वैल्यू कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी मर्जी हो हमें एक ही टाइम पे एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर पाएंगे। अ सेट इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ रेडियो बॉक्सेस विद द सेम नेम एट्रीब्यूट, तो इनका नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, ताकि उसको पता लग जाएगा कि एक सेट है, इन सभी सेम सिमिलर नेम में से हमें आउटपुट में क्या लेके जाना है, सिर्फ एक ही नेम लेके जाना है। नेवर सेट मोर देन वन रेडियो बॉक्स एट ए टाइम विद द चेक्ड एट्रीब्यूट, लाइक अगर हमने प्री डिफाइंडली ही लाइक मेल के ऊपर चेक लगाना है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल कराया था, तो यहाँ पे एक डार्क सा ऐसे शो हो जाता है। दैट मीन्स जो स्पेसिफाई करता है कि अगर आप इस ऑप्शन में से कोई चूज़ करो कि ना चूज़ करो तो ऑटोमेटिकली सर्वर इसको एज ए मेल कंसिडर कर लेगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल है, जैसे देखिए यहाँ पे लगाया मैंने चार्ज कार्ड, मीन्स पेमेंट गेटवे का एग्जांपल ये है कि कार्ड जो आपने पेमेंट करनी है वो उसका गेटवे क्या है, किस टाइप का कार्ड है। तो इनपुट नेम दिया मैंने, यहाँ पे देखिए नाम दिया सीसी, इसी का जो टाइप थी उसी के रिगार्डिंग मैंने नाम दे दिया सीसी। वैल्यू क्या दी, वीज़ा कार्ड है आपका, टाइप क्या है उसकी, रेडियो है, तो आउटपुट में क्या लिया, वीज़ा। तो देखिए इसकी आउटपुट कैसे आएगी, एक तो ये राउंड बना आएगा डिस्प्ले में वीज़ा। नेक्स्ट अगेन मैंने मल्टीपल वीज़ा का, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या लिए मैंने, मास्टर कार्ड के लिए, मास्टर कार्ड शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए बी आर टैग नहीं लगा तो इसीलिए मैं इसको साथ साथ लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट आ जाएगी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक्ड किसी को शो ही नहीं करवाया है। तो अगर चेक्ड शो करवाना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, चेक्ड आगे उसका नाम, लाइक वीज़ा, तो वीज़ा सेलेक्ट कर दिया मैंने, तो वीज़ा को चेक आउट, राइट। नेक्स्ट आता है हिडन एट्रीब्यूट्स। हिडन एट्रीब्यूट्स आर रेयरली यूज्ड व्हेन दिस टाइप इज चूजन, नो फील्ड इज प्रेजेंटेड टू द यूजर, यूजर के आगे कोई फील्ड शो नहीं हो रही होगी। प्राइमरी यूज इज रिकॉर्ड कीपिंग फॉर प्रोग्राम्स दैट में पास यूजर इनपुट फ्रॉम फॉर्म्स, मे बी यूज्ड फॉर शॉपिंग कार्ड्स। शॉपिंग कार्ड्स के अंदर अगर देखा होगा आपने, जैसे ही आप अपना कार्ड नंबर वगैरह फिल करते हो तो वो कार्ड नंबर जैसे ही आपने फिल करा तो वो क्या हो जाता है, हिडन वैल्यू नेक्स्ट पेज पे आप डिवर्ट करते हैं। जब आपका ओटीपी मांग रहा है तो उस टाइप में ये सारी फील्ड्स को क्या करता है, हाइड कर देता है ताकि वो आपको शो ना करे, यूज़र को शो ना हो। लाइक जो आप CVV नंबर फिल करते हो वो भी आपको क्या कर देते हो, वो हाइड कर देता है, ठीक है। यूज़र को आगे पास ऑन नहीं करता है, एज ए क्वेरी में पास नहीं करता है, पोस्ट मेथड में भी पास नहीं करता है, वो उसी टाइम पे उसको हाइड करके बस एक्सेप्ट करवा देता है। नेक्स्ट आता है टाइप, टेक्स्ट टाइप। लाइक अगर हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, इट स्पेसिफाई अ सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री फील्ड, जिसमें सिर्फ हम सिंगल लाइन में ही डाटा एंटर कर सकते हैं, लाइक नेम। एक ही लाइन में अगर आप एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड विद मैक्सिमम लेंथ एंड साइज एट्रीब्यूट, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ एंड साइज एट्रीब्यूट में हमें मैक्सिमम लेंथ बतानी, लाइक एग्जांपल कैसे है देखिए आगे। द फर्स्ट नेम स्पेसिफाई द इनपुट नेम, एफ नेम, टाइप क्या है उसकी, टेक्स्ट है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है कैरेक्टर्स की, 30 होती है, और उसका साइज क्या है, साइज स्पेसिफाई करेगा इस टेक्स्ट फील्ड का साइज, जो ये बॉक्स बनेगा इसका क्या साइज होगा, 30, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट नेम, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं एफ लगाता हूँ, एफ नेम, यहाँ पे उसने बी आर टैग नहीं लिया है, इट मीन्स हमने यहाँ पे भी लिखना है इसके साथ ही लास्ट नेम इक्वल्स टू दिस बॉक्स, ओके। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स तक का नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में एंटर करवा सकता हूँ। नेक्स्ट आती है पासवर्ड टाइप। अब पासवर्ड टाइप क्या है, इंटरेस्टिंग वन है। आपने देखा होगा जब आप यूज़र नेम लाइक जीमेल ही ओपन करते हो, यूज़र नेम एंटर करते हो तो यूज़र नेम आपको यहाँ पे शो होता है, लाइक abc@gmail.com। जब आप पासवर्ड लगाते हो तो वहाँ पे क्या आ जाता है, स्टार या ब्लैक डॉट्स बने आ जाते हैं। ये क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टाइप सेट होती है वो कौन सी सेट होती है, पासवर्ड टाइप सेट होती है। मीन्स जो भी आप डाटा एंटर कर रहे होगे वो विजिबल नहीं होगा किसको, यूज़र को, वो उसके हाइड कर देता है। हाइड इन टर्म्स ऑफ बाय मेकिंग एनी सिंबल्स, स्टार सिंबल लगा देगा या डॉट सिंबल लगा देगा। सेम एज टेक्स्ट एक्सेप्ट द टेक्स्ट एंटर बाय द यूज़र इज ऑब्सक्योर्ड।
इट यूज़ द मैक्सिमम लेंथ एंड साइज एट्रीब्यूट। इसका भी मैक्सिमम लेंथ देखा होगा कि कई बार यूज़र हमें मांगता है कि मैक्सिमम लेंथ जो पासवर्ड की हो सकती है वो 8 कैरेक्टर्स की हो सकती है या 10 कैरेक्टर्स की हो सकती है, इससे बड़ा पासवर्ड हम नहीं लगा सकते। तो वो मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करेगा, साइज़ बताएगा कितना साइज़ का टेक्स्ट फील्ड हो सकता है। तो ये कैसे लगता है, तो देखिए एंटर योर पासवर्ड, तो लेबल लगाया है यहाँ पे, तो कैसे वर्क करेगा, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, कॉलन लगाया, तो यहाँ पे वो क्या लग देगा, बॉक्स लगा देगा, ठीक है, जिसके अंदर हम 30 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम लेंथ तक का ही पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारा टाइप एट्रीब्यूट ऑफ सबमिट एंड रीसेट टाइप। दो टाइप्स के बटन हैं, इसको हम सबमिट बटन और रीसेट बटन भी बोल सकते हैं। सबमिट इज यूज टू सबमिट द फॉर्म्स कंटेंट एज स्पेसिफाइड बाय द एक्शन एट्रीब्यूट, मीन्स जो एक्शन एट्रीब्यूट पे यूआरएल गिवन होगा, ठीक है, जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो सारे के सारे कंटेंट होगा, फॉर्म का कंटेंट होगा, मीन जो यूज़र ने इनपुट दी होगी वो कहाँ पे चले जाएगी, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। ओके, रीसेट क्या करेगा, सेट ऑल द फील्ड्स इन द फॉर्म टू देयर इनिशियल वैल्यूज। मीन्स रीसेट बटन आपको पता ही है कि सारी की सारी वैल्यू को बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। अगर सारी की सारी ब्लैंक होंगी तो वो ब्लैंक शो हो जाएंगी, अगर किन में हमें कोई वैल्यू स्पेसिफाई करी होगी तो वो प्रीवियसली वैल्यू या बाय डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर देगा। यूज़ कैसे करना है, इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट। अब इसके वैल्यूज इक्वल टू प्लेस योर ऑर्डर या फिर स्टार्ट ओवर, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बटन टाइप। इट क्रिएट अ बटन हुज यूज कैन बी डिफाइंड थ्रू स्क्रिप्टिंग एंड ऑन क्लिक इवेंट। लाइक अगर आपने कोई बटन दे दिया है, बटन बनाना है लाइक सबमिट का, सेव का, सबमिट की जगह पे यहाँ पे आप सेव लिख सकते हो, बैक लिख सकते हो, तो कोई भी आप बटन क्रिएट कर सकते हो। तो वो बटन कैसे बन जाएगा, एक बॉक्स टाइप सा आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कोई भी जो आप टेक्स्ट शो करोगे वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो वह एक्ट क्या करेगा, ऐसे बटन एक्ट करेगा, ठीक है। जो बटन की कोडिंग होगी वो हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम सिर्फ द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज जावा की हेल्प से लिख सकते हैं। और वहाँ पे कौन से इवेंट परफॉर्म होते हैं, ऑन क्लिक इवेंट, क्योंकि बटन है, बटन के ऊपर हम बटन के अंदर कोई टेक्स्ट तो इंसर्ट कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर सिर्फ क्लिक ही कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास इवेंट है, प्री डिफाइंड इवेंट है ऑन क्लिक, तो वो जैसे ही हम ऑन क्लिक करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो फंक्शन की कोडिंग हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में स्पेसिफाई करेंगे। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ बैक बटन ओनली यूजफुल टू द ब्राउजर्स दैट सपोर्ट स्क्रिप्टिंग। ऑलमोस्ट ऑल ब्राउजर सपोर्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बटन लगाया है तो उसकी कोडिंग कोई एक्सेप्ट ना करे। ओके, कई बार आपने देखा होगा अगर आपने ऑनलाइन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो वहाँ पे बैक बटन डिसेबल हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हम स्क्रिप्ट बैक बटन के जो बटन होते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। वो भी कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम बैक ना जाए, ठीक है। अगर बैक जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर दें, हमारा लॉग आउट कर दें। ओके, तो कैसे लगता है ये इनपुट टाइप बटन, देखिए फॉर्म एंटर करा तो इनपुट टाइप क्या लगाई मैंने, बटन रखी, वैल्यू दी बैक टू द लास्ट डॉक्यूमेंट, मीन्स प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे आ जाए। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक क्या है, इवेंट है, इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हिस्ट्री डॉट बैक, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसकी फंक्शन क्या है, हिस्ट्री डॉट बैक। तो जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियसली पेज पे आपको क्या कर देगा, शो करवा देगा। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि अगर हमारे पास जो हम यूज़र को इनपुट करवा रहे हैं वो मल्टीपल लाइंस का कंटेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। सपोज करो एड्रेस के लिए, एड्रेस फील्ड के लिए मोस्टली यूज़ होता है, या फिर फीडबैक के लिए। अगर हमने फीडबैक लेनी है तो फीडबैक हमारी 500 वर्ड्स की हो सकती है या 1000 वर्ड्स की हो सकती है, या मैक्सिमम जितनी मर्जी आप कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड जिसको बोल सकते हैं हम, टेक्स्ट फील्ड तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और ये क्या एक्सेप्ट करता है, एज ए सिंगल लाइन डाटा ही एक्सेप्ट करता है। सिंगल लाइन मीन्स यहाँ पे एंटर क्या होता है, डिसेबल होता है। बट टेक्स्ट एरिया में हमारा क्या होता है, हम मल्टीपल लाइन का कंटेंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया लेट यूजर एंटर मोर देन वन लाइन ऑफ टेक्स्ट, एक से ज़्यादा लाइन का टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हो। इट यूजेस एट्रीब्यूट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू साइज
अगर हमने आप टेक्स्ट एरिया का भी कुछ साइज लिमिट करना है तो उसके लिए हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, हम दो चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं, रोज एंड कॉलम्स, मीन्स कितने कॉलम्स तक डाटा वो एक्सेप्ट करे और कितनी रोज तक वो डाटा एक्सेप्ट करे। कुछ एक अनदर एट्रीब्यूट है रैप एट्रीब्यूट। रैप एट्रीब्यूट क्या होता है, वर्ड रैपिंग जिसको हम बोल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, ऑफ होती है, नो रैपिंग होती है। वर्चुअल मीन डिस्प्ले रैप बट लॉन्ग लाइन्स आर सेंट ऑन वन लाइन, मीन्स टेक्स्ट को तो रैप करता जाए बट जितना जितना आपने एक लाइन के अंदर एंटर किया है, जब तक आप एंटर नहीं मारेंगे तब तक वो कंसिडर नहीं करेगा उसको नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजिकली। वर्ड रैप एंड टेक्स्ट इज सेंट विद रैप पॉइंट। हम एक बाय डिफॉल्ट रैप पॉइंट सेंड कर सकते हैं, लाइक कि एक लाइन के अंदर सिर्फ 50 करेक्टर्स ही आएंगे, तो हर लाइन के अंदर वो 50 करेक्टर्स ही कंसिडर करेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट आता है पुल डाउन मेन्यूज, मीन्स ड्रॉप डाउन। तो इसके लिए हमारे पास दो टैग्स अवेलेबल है जिसको जो हम कहते हैं सिलेक्ट एंड ऑप्शन टू क्रिएट पुल डाउन मेन्यू। सिलेक्ट एंड ऑप्शन हमारे पास दो एक टैग्स हैं जिसके विद द हेल्प ऑफ दीज टैग्स हम क्या कर सकते हैं, पुल डाउन मेन्यू क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिलेक्ट का। इट अलाउ यूजर्स टू चूज वन और पॉसिबली मोर देन आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। अगर मल्टीपल आइटम्स हमने चूज करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्ट। तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मल्टीपल, साइज एंड नेम। हमें नेम देना होगा, हमें मैक्सिमम साइज देना होगा, हमें मल्टीपल को एक्टिवेट करना होगा। नेक्स्ट इज ऑप्शन। ऑप्शन स्पेसिफाइज द लिस्ट आइटम, कि जो हमने ऑप्शन में अंदर स्पेसिफाई करी हैं वो कितनी लिस्ट आइटम्स को स्पेसिफाई करेगा। जैसे हमने लिस्ट के करे थे, यहाँ पे क्या था हमारा अनऑर्डर लिस्ट में हम लिस्ट आइटम्स को स्पेसिफाई करते थे LI के साथ। सिमिलरली OL के साथ भी LI यूज़ करता था, बट DL के साथ क्या यूज़ होता था, DT एंड DD टैग। ठीक है, इसीलिए अगर आपने ड्रॉप डाउन बनाना है वहाँ पे सिलेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, ऑप्शन, दैट विल स्पेसिफाइज द लिस्ट आइटम्स। तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, सिलेक्टेड, कौन सी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो, उसकी वैल्यू क्या हो और उसका लेबल क्या हो। ओके, ये एक एग्जांपल है, पिक योर फेवरेट बास्केटबॉल टीम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि हमें यूजर से इनपुट लेनी है कि उसकी फेवरेट बास्केटबॉल टीम कौन सी है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू टीम। ठीक है, हमने नाम दिया, सिलेक्ट ऑप्शन लगाई, उसका नाम क्या दिया, टीम दिया, ऑप्शन लगाई, डॉगर्स, ब्रेवर्स, कार्डिनल्स एंड यंकीज। तो इनमें से जो भी उसने सेलेक्ट करनी होगी वो ऑप्शन इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फील्ड सेट्स एंड लेजेंड्स एलिमेंट्स। ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड डाटा इन अ फॉर्म। ग्रुप रिलेटेड डाटा इन अ फॉर्म, इसके कहने का क्या मतलब है, कई बार आपने देखा होगा हमारा जो फॉर्म होता है वो उसके अंदर ऑलमोस्ट 15 to 20 कैटेगरीज होती हैं जिसको यूज़र ने फिल करनी होती है, बट उन कैटेगरीज को उसने आगे फर्दर सब कैटेगरीज में डिफाइन किया होता है। लाइक जैसे अगर आप एक कॉलेज का या एक जॉब रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आपसे मांगता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। ठीक है, तो जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के एक बॉक्स बना होता है जिसका टाइटल दिया होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आपका होता है नेम, फादर्स नेम, DOB और एड्रेस, ऐसे कुछ फील्ड्स आपको गिवन होती हैं। फिर उसके नीचे आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा होता है कि आपने 10th कहाँ से की है, +2 कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ऐसे कौन सा। फिर आपके पास आ रहा होता है आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स या फिर एक्सपीरियंस, ऐसे अलग अलग बॉक्सेस डिफाइन होते हैं पेजेस के अंदर। तो ये बॉक्सेस कैसे डिफाइन होते हैं, ये बॉक्सेस डिफाइन होते हैं फील्ड सेट के थ्रू, क्योंकि ये फील्ड सेट क्या करता है, कुछ सिमिलर टाइप्स के डाटा जो हम इनपुट करवा रहे हैं उसको एक ग्रुप में कर देते हैं, और उस ग्रुप का क्या बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं, फील्ड सेट। तो देखिए जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपके पास डाटा आइटम्स आ रही हैं, हमने क्या किया, उनको ग्रुप कर दिया और उसको क्या नाम दे दिया, फील्ड सेट। ठीक है, एक फील्ड सेट मेरी ये बन गई, एक फील्ड सेट मेरी ये बन गई, एक ये वाली बन गई फील्ड सेट 3 एंड सो ऑन। बट अब लेजेंड क्या है इसमें, लेजेंड एलिमेंट डिफाइंस द कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी आ रही होगी वो कैसे लिखी आ रही होगी, विद द हेल्प ऑफ लेजेंड टैग। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये क्या बना मेरा, लेजेंड टैग बना।
यहाँ पे क्या बना, प्रोफेशनल एजुकेशन, तो यहाँ पे भी ये भी क्या बना मेरा, लेजेंड बना। और जो ये सारा का सारा फील्ड सेट क्या बना, ये सारे के सारे जो ग्रुप कर रहे हैं मैंने एलिमेंट्स को, ये क्या बने मेरे फील्ड सेट बने। तो देखिए एग्जांपल है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, क्या बनाया, फॉर्म किया, फॉर्म का जो एक्शन वाला पेज है वो क्या है, एक्शन पेज डॉट PHP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाया, फील्ड सेट लगाई, ठीक है। फील्ड सेट स्टार्ट किया, तो फील्ड सेट में क्या लगाया मैंने, पर्सनलाइज, ठीक है, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो वो कैसे आएगा आपको आउटपुट में, ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा पर्सनलाइज, जो पर्सनलाइज, ओके, ठीक है। क्योंकि ये लेजेंड है, तो लेजेंड मीन्स स्पेसिफाइंग द टाइटल या कैप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड सेट। उसके बाद आया लेबल एफ नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ नेम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या लगाया, टेक्स्ट फील्ड लगाई है, तो मैंने यहाँ पे लगा दी टेक्स्ट फील्ड। अब यहाँ पे देखिए उसने वैल्यू क्या दी है, जॉन, तो यहाँ पे जो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, जॉन, क्योंकि वैल्यू उसकी स्पेसिफाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, उसने लास्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम इक्वल्स टू वैल्यू यहाँ पे क्या है, DOE, डो, उसकी कास्ट है, तो वो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट है सबमिट, बटन लगाया है यहाँ पे, टाइप है सबमिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या है उसकी, यहाँ पे एक बटन आ गया जिसकी वैल्यू क्या है, सबमिट, तो सबमिट लिखना हो गया। तो ये क्या बन गया, आप मेरा एक फील्ड सेट बन गया, ओके। नेक्स्ट टाइप आती है, देयर आर सम अदर टाइप एलिमेंट्स लाइक कलर। अगर आपने कोई कलर चूज करना है, तो इट इज़ यूज फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ कलर। तो उसको कैसे डिफाइन करना है, इनपुट टाइप क्या होगी, कलर होगी, उसकी कोई ID देनी है, नाम देना है और फेवरेट कलर। तो उसके आउटपुट में कैसे आ जाएगा, आपको यहाँ पे एक बटन शो हो जाएगा चूज कलर का, कलर, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको कलर के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको एक विंडो से शो हो जाएगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, तो आप उनमें से कोई भी कलर चूज करोगे तो आपको वो सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट आती है, कई बार हमने डेट को सेट करवाना था, जैसे DOB होता है, डेट इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ डेट, अ डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। तो हमारा एक डेट पिकर शो हो जाता है, लाइक हमें डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करवानी होती है, या फिर हमें अगर बैंक की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट आती हैं, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग, तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेट एट्रीब्यूट कैसे लगाना है, लाइक इनपुट टाइप डेट, ID बर्थडे, नेम बर्थडे, ओके। तो यहाँ पे इसके अंदर दो हम एडिशनल एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिन एंड मैक्सिमम। दीज मिन एंड मैक्सिमम आर यूज टू अप्लाई रिस्ट्रिक्शन ऑन डेट। लाइक अगर हमने मोस्टली वेबसाइट जो अगर हमने कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या लिखा आता है कि जो भी 18+ एज के हैं वही इस कंटेंट को या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या सेट कर देते हैं, एक मिनिमम डेट सेट कर देते हैं, जो कि जिनकी एज 18 ईयर्स से बिलो है, ठीक है, वो उस फॉर्म को ना शो हो। तो उस टाइप में क्या होता है, आपकी वो जो डेट होती है, अगर सपोज करो आप 2020 चल रहा है, तो अगर मैं करूँ कि 2010 बॉर्न स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, एक फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसने डेट ऑफ बर्थ आप ऑब्वियसली वो सेलेक्ट करेगा लाइक 3 मार्च 2010। तो अगर उसने सेलेक्ट किया, तो अगर हमने यहाँ पे मिनिमम डेट स्पेसिफाई करी होगी कि लाइक 18 साल पहले, मीन्स 2002 से बॉर्न वाले पहले वाले इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे उसकी एक मिनिमम डेट स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसे ही वो डेट सेलेक्ट करेगा, डेट तो वो ऑब्वियसली चूज कर सकता है, तो जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा तो वो उसकी सिलेक्ट डेट नहीं होगी, वो डिसेबल हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट आता है ईमेल फील्ड। ईमेल इज यूज्ड फॉर, टाइप है ईमेल, ईमेल इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन एन ईमेल एड्रेस। तो कई बार आपने देखा होगा बॉक्स लगा होता है ईमेल का, ऐसे वो बोल रहा है आपको एंटर करो ईमेल, तो अब आप एंटर करते हो ईमेल, तो वहाँ पे आपने जो ईमेल का फॉर्मेट है आप उसको फॉलो नहीं करते, तो सिंपली आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे भी अपना नाम लिख दिया, तो वो वैलिडेट नहीं करेगा इसको। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेट है वही लेना है। तो ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, लाइक फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा, नेम, देन @, देन द डोमेन नेम, देन .com, whatever, .com या .edu, जो कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा, तो इसका फॉर्मेट क्या बनता है, टेक्स्ट, @ सम टेक्स्ट, .text। तो ये जिसका ईमेल का फॉर्मेट होता है चेक करने का, कि अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आती है फाइल। अगर आपने कोई फाइल अपलोडिंग का लगाना है,
वेब पेज के अंदर कि आप अपनी कोई यूज़र अपनी फाइल अपलोड कर सके या पिक्चर अपलोड करेंगे, तो वो कैसे लगाना है उसके लिए हमारे पास जो इनपुट टाइप है वो फाइल है। इट डिफाइन अ फाइल सिलेक्टेड फील्ड एंड अ ब्राउज बटन फॉर द फाइल अपलोड। तो देखा होगा जैसे भी आप कहते हैं यहाँ पे लिखा होता है सिलेक्ट, यहाँ पे लिखा होता है ब्राउज या सिलेक्ट, तो आप सिलेक्ट के ऊपर करते हो तो आपको एक विंडो ओपन हो जाती है जो क्या स्पेसिफाई करती है आपकी लोकेशंस को, किसकी लोकेशन को, कंप्यूटर की लोकेशंस की, आपने कहाँ से डाटा को या उस पर्टिकुलर इमेज को या जो भी आपने फाइल अपलोड करनी है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे उसका इस बॉक्स के अंदर उसका नाम आ जाता है और वो फाइल अपलोड हो जाती है सर्वर पे। अब बात करते हैं कुछ, पहले मैंने 4 एट्रीब्यूट डिस्कस करे थे इनपुट टाइप के, कौन कौन से थे। फर्स्टली उसका था नाम, मेथड, एक्शन एंड इंक्रिप्शन। कौन से 4 डिस्कस कर चुका हूँ मैं। एक्शन जो क्या करता था, जिस पेज पे ऊपर डाटा सेव करवाना है या एक्शन प्रोसेस करना है उसके ऊपर रीडायरेक्ट करवाता था। नेक्स्ट क्या था, मेथड था कि किस टाइप से हमने डाटा जो यूज़र से ले रहे हैं इनपुट्स फील्ड में उसको पास करना है। तो गेट एंड पोस्ट, तो गेट मेथड क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड था। तो यहाँ पे देखिए गेट मेथड की एक लेंथ होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2048 कैरेक्टर्स का ही डाटा एक्सेप्ट करेगा। इससे ज़्यादा अगर यूआरएल हम पास करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एज ए गेट मेथड, ठीक है। तो ये पहले मैं शायद बताया नहीं बताया, भूल गया हूँ मैं, तो ये याद रखना 2048 ही लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ फॉर गेट मेथड। ओके, तो ये इसकी लेंथ भी कई बार पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। तो पोस्ट के अंदर क्या होता है, वो एज ए फाइल सेंड होती है, तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो उसके अलावा लास्ट था, ये था हो गए 2 हो गए, एक्शन, मेथड। थर्ड था मेरे पास नेम, कि हमें कोई भी फॉर्म बनाना है उसका नेम स्पेसिफाई करना है। और तो फोर्थ था मेरे पास इंक्रिप्शन टाइप, ENC टाइप, तो कौन सी टाइप की इंक्रिप्शन है, ठीक है। तो ये सारा जो पहले एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इनके अलावा जो अदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, दैट आर नो वैलिडेट एंड टारगेट। क्योंकि इनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बहुत बार हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हो या सीख रहे हो वेब डेवलपमेंट, बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक दोनों के बेसिस पे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो नो वैलिडेट मीन्स दिस इज अ बुलियन एट्रीब्यूट, मीन्स इट हैज़ वैल्यू आइदर इन टर्म्स ऑफ 0 और 1, मीन्स येस और नो। When it present, it specifies that the form data should not be validated when submitted. Means अगर हम इसको लिख रहे होंगे अपने फॉर्म में एज ए एट्रीब्यूट, तो ये स्पेसिफाई करेगा कि जो भी अपने डाटा यूज़र ने इनपुट करा है हमें उसको वैलिडेट नहीं करना है। वैलिडेट मीन्स चेक नहीं करना है, डायरेक्टली पास कर देना है। अगर हमने ये नहीं लिखा होता तो ये जो भी डाटा होता है फॉर्म्स के अंदर, तो वो उसको क्या करता है, वैलिडेट करता है कि जो डाटा दे रहा है वो सारी फील्ड्स के अंदर आ रहा है डाटा या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको मेंशन कैसे करते हैं, लाइक फॉर्म, एक्शन, जो भी यूआरएल होगा हमने पास करना है, उसके बाद डायरेक्टली इसके एज इट इज़ ही इसका लिखना है, क्योंकि इसमें बुलियन एट्रीब्यूट है, ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया नो वैलिडेट। इट मीन्स अब इस फॉर्म के अंदर जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे, जब हम उसको सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये कोई भी उसको रीचेक नहीं करेगा कि कोई हमसे कोई रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर छूट तो नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आया है जो हम डिस्कस करेंगे हमारी लाइव क्लास में। टारगेट, दिस एट्रीब्यूट विल स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। अब लिंक डॉक्यूमेंट क्या होगा, लाइक जैसे ही आपने सबमिट बटन कराया, जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो क्या होगा, एज ए लिंक ही जनरेट होगा ना। तो वो जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे ओपन होगा, तो इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। एट्रीब्यूट वैल्यूज़ फॉर टारगेट्स आर _blank, _self, _parent, _top। ये 4 वैल्यूज़ हैं जो ये टारगेट फील्ड को हम दे सकते हैं या प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आती है _blank, इट ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और अ टैब। कई बार आपने देखा होगा जैसे ही आप बटन सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपके ऊपर नेक्स्ट विंडो में या नेक्स्ट टैब के ऊपर मैसेज शो आता है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, या फिर कुछ और आउटपुट जनरेट होती है तो वो आपको शो हो जाती है। कई बार होता है कि वो सेम पेज पे आ जाती है, दैट इज़ अगर सेम पेज पे आउटपुट लेनी है तो हमें टारगेट को क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सेल्फ, मीन्स ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम और यू कैन से इन द सेम पेज। बाय डिफॉल्ट यही मेथड यूज होता है।
अगर आपने टारगेट फॉर्म में नहीं स्पेसिफाई करा है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा यूज़ करेगा, अंडरस्कोर सेल्फ ही यूज़ करेगा। ओके, अगर आपने उसको नेक्स्ट विंडो में शो करवाना है तो आपके लिए उसको टारगेट की वैल्यू क्या सेट करनी पड़ेगी, अंडरस्कोर ब्लैंक सेट करनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्कोर पेरेंट, इट ओपन इन अ पेरेंट फ्रेम। अगर आपके पास एक विंडो में मल्टीपल फ्रेम्स है तो जो पेरेंट फ्रेम होगा, जो उसके टॉप वाला फ्रेम होगा, वो उसी में ओपन करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू होती है अंडरस्कोर टॉप, इट ओपन इट इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो। तो ये पूरे के पूरे विंडो के अंदर वो पर्टिकुलर मैसेज को ही शो करेगा। ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सेल्फ के साथ। ठीक है, तो दिस इज, तो अब टारगेट को लिखना कैसे है, तो अगर मैं इसी के साथ लिख रहा हूं यहाँ पे, इसके बाद टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर मैंने ये मेंशन कर दिया तो जो भी ये फॉर्म डाटा एक्सेप्ट करेगा वो नेक्स्ट पेज में आउटपुट में शो होगा। अब बात करते हैं कि जो मेथड है गेट एंड पोस्ट के, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि ये कैसे फॉर्म्स के डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। तो हैंडलिंग गेट फॉर्म, गेट फॉर्म अगर हमने मेथड जो है गेट यूज़ करा है तो उसको कैसे हैंडल करना है। अ टिपिकल इनोवेशन ऑफ गेट स्टाइल एप्लीकेशन माइट यूज अ यूआरएल लाइक दिस। सपोज करो ये यूआरएल है, तो इसके अंदर देखिए नाम क्या पास हो रहा है, बॉब पास हो रहा है, फ़ोन नंबर क्या पास हो रहा है ये। तो जैसे ही आपने जो आपके पास फॉर्म होगा वहाँ पे आपके पास क्या होगा, इनपुट एक नेम की है और एक किसकी है, फ़ोन नंबर की है। तो नेम के अंदर हमने अगर लिखा है बॉब और फ़ोन नंबर के अंदर लिखा है हमने 1212, तो ये डायरेक्टली जैसे हमने सबमिट बटन क्लिक किया तो ये विंडो, ये जो ये इनपुट्स है नेम और फ़ोन नंबर की, वो कहाँ पे पास हो जाएंगी, यहाँ पे पास हो जाएंगी यूआरएल में। आफ्टर क्वेश्चन मार्क, आफ्टर क्वेश्चन मार्क तो देखिए यहाँ पे नेम है इक्वल्स टू बॉब जो आपने इनपुट दिए, तो बॉब क्या थी, आपका नाम था। अब इन दोनों के बीच को क्लब करने, नेक्स्ट फील्ड को क्लब करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एम्परसेंड यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो नेक्स्ट क्या था फील्ड हमारी, फ़ोन इक्वल्स टू जो फ़ोन की वैल्यू थी। ठीक है, अगर यहाँ पे होता आपका ईमेल एड्रेस तो यहाँ पे आ जाना था अगेन एंड ईमेल इक्वल्स टू जो भी आपने ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे आपने पास करा होता तो वो उसकी वैल्यू आ जानी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहाँ पे शो हो रही होती है, यूआरएल में शो हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द सेफेस्ट वे टू सेंड द इंफॉर्मेशन और टू पोस्ट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हेन द सर्वर प्रोसेस दिस यूआरएल इट इन्वोक्स द एप्लीकेशन नेम डंप गेट स्टोर्ड इन द डायरेक्टरी नेम CGI bin, क्योंकि अब जैसे ही सबमिट बटन किया तो सर्वर ने जो ये रिक्वेस्ट आई इस यूआरएल की, तो उसने क्या किया, डंप गेट, यहाँ पे लिखा है ना यूआरएल में आ रहा है, देखिए डंप गेट। पहले इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे यूआरएल में आ रहा है डंप गेट। ठीक है, ये रहा डंप गेट। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली सर्वर इस फोल्डर को जाके चेक करेगा और उसमें से देखेगा कि ये CGI bin फाइल की कोई नेम तो फाइल तो नहीं है। एवरीथिंग आफ्टर द क्वेश्चन मार्क इज पास्ड एज एन एप्लीकेशन एज ए पैरामीटर, और जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद, जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके बाद में जो डाटा पास होगा वो क्या होंगे, आपके पैरामीटर्स ही होंगे। ठीक है, जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यू जो यूजर ने पास करी होगी। द पैरामीटर्स आर प्लेस्ड इन अ वेरिएबल नेम क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके सेव हो जाएंगे, क्वेरी स्ट्रिंग के वेरिएबल में जाके वो सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है पोस्ट मेथड, डाटा इज सेंट इन दिस फॉर्मेट, तो वो डायरेक्टली डाटा इसी फॉर्मेट में जाता है बट नॉट इन यूआरएल में नहीं जाता, वो एज ए फाइल की फॉर्म में डाटा पास हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।